आपका आज की वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है When Sadhguru faced Pakistani question, crowd clapped for no reason. Be with Sadhguru Islam. ओके। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। इनके चैनल को उसके लग में ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Namaskaram Sadhguru. ओके, नमस्कार। Sadhguru, I am from Karachi, Pakistan. And my question is just this, that being in your gracious presence, this is just a coincidence, or this is predestined, or this is some sort of good deeds in the past? ओके, Thank you very much. मतलब इतना ज्यादा वो हाँ, पसंद करते हैं और उनसे प्रभावित हैं। इंस्पायर है काफी ज्यादा। Anybody else? Just, I'm sorry. Just if you mention your nationality, they're all clapping big time. Because this has happened, because in the name of nationality, race, religion, gender, caste, creed, how many ways we have found to separate humanity? True. How many ways? We're constantly looking for new ways. Language, race, nationality, religion, caste, creed, this, that, no matter what. Coffee people and tea people, yes. Morning people and evening people, all kinds. So when this is the case, and we are also getting super empowered as human beings. What 10,000 men could not do 1,000 years ago, today one man can do simply because of technology and other empowerments. And this empowerment is on all levels, both positive and negative. So, as long as we clearly divide ourselves in whatever way, whether it is caste, creed, race, religion, doesn't matter which way, or even gender, as long as we hold these identities of separation very strongly, conflict is inevitable. Hello? It's just a question of time. It's just a question of time before somebody steps on your feet and there'll be a conflict. So, now that we are so super empowered that we have enough power to destroy not one nation, we can destroy the whole planet many times over. That much empowerment we have. When we are like this, it's extremely important we find some common ground, some common factor, a common denominator for all of us. If you do not understand what is this all-inclusive cosmic consciousness, it's too far away and vague and abstract for you, at least you must understand that soil is that unifying factor. For soil and soil organisms and soil ecology, our national boundaries mean nothing. Today, there is substantial science to show you how the soil ecology is communicating and integrated across the world. So you can't fix one nation and leave the other nation out. If you want to fix the soil, it has to be a global action, because that is how life is functioning. As a person, you may be an Indian or a Pakistani or this or that, but as a life, you're just of this earth. Hello? So, first and foremost thing is we are life, then other identities which add color to our life. You're a man, you dress one way, you're a woman, you dress another way. This adds color to our life, otherwise we could make everybody same. There would be no color to life. So you're an Indian, you're one way, you speak one kind of language, you sing another kind of music, somebody sings something else. All this adds color to our life. But fundamentally we are life. If we don't get this, we will pay the price in so many different ways. So I'm here, is it my past karma?
this question should not come from Pakistan. Karma is an Indian problem. Now, what karma means is that the simple way to look at it is, today morning if you ate some bad food, you'll have some bad results in the evening. Or you ate some very conducive food, it has its results in some way. I'm making it very ridiculously simple example. It's that simple because every action that you perform has a consequence. This is the nature of life. This is not in terms of good and bad. This must be dropped. This idea, I did bad karma, so bad things happening to me, good karma, good things… No. Karma means it is the residual memory of everything that you do in your body, in your mind, in your emotion, in your energy. These four dimensions of activity are going on all the time. So, all these four activities leave a residue. That residue will start functioning in a certain way within you, where it automizes you to some extent. Is it a bad thing? No. Otherwise, you will have to think about everything fresh. Little automation is okay, but you must be conscious enough to rise above that. Otherwise, your past will rule your present and future. There is I will not go into this because this is an elaborate thing that you have raised. See, Pakistanis are always putting us into trouble, asking such questions which will take 10 days for me to explain. There is a book on karma. If it is here, I will ask them to give it to you, sir, please. Thank you. भाई सदगुरु जी की बात करें तो मैंने बहुत सारे लोगों को जो है ना इन्हें सुनते हुए देखा है, इनसे बहुत सारी चीज़ों जो है इंस्पायर होते हुए देखा है। उसकी मुझे एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो ये लगती है कि हम जब यानी कि जितने भी उनके हमने सेशंस देखे हैं उसमें जो वो जवाब देते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट करके जो है ना वो जवाब देते हैं चीज़ों का। मैं कहूँगी सदगुरु की बातों को समझना आसान नहीं है। मैं जितने भी उनके सेशन सुनते हैं ना उनमें से कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर से गुजर जाती हैं, तो उनको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मतलब डीपली चीज़ों को लेना पड़ता है, या आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है भाई कि इसका क्या मतलब हो सकता है या क्या कहा होगा। बिल्कुल। बट आज का जो हम लोगों ने वीडियो देखा और उसमें जिस तरीके से जो कराची से आए हुए मतलब जो भी व्यक्ति थे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, तो पहले तो मैं पहले बड़ी वो हो रही थी, क्यूरियोसिटी होती थी कि क्या क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर जब उसके बाद क्वेश्चन आया सो मुझे ये पता चला कि वो सदगुरु को बहुत सुनते होंगे, वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, और जैसे उन्होंने बोला कि मतलब वो आज मतलब उनकी प्रेजेंस में मतलब उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो सदगुरु को लाइव सुन सकें, तो क्या ये उनके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे या पहले से डिसाइडेड होगा उनकी डेस्टिनी में, या मतलब क्या वो खुद ये जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि समटाइम्स चीज़ें हमारे साथ ऐसे होती है ना कि हम लोग को पता नहीं चलता लेकिन हम उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा इंक्लाइन करना शुरू हो जाते हैं उस साइड। बिल्कुल यार, बिल्कुल सदगुरु जी ने जो जवाब दिया ना कि जो रेस नेशनलिटी हर चीज़ से जो है आप बाहर निकल कर देखें ना तो आप एक इंसान है, ये वाकई हम इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं कि भाई फलाना हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, वो अच्छे रैंक पे तो उसका भाई हमें वो ये करना है वो करना है, ठीक है, एक रिस्पेक्ट हर इंसान की होती है। लेकिन जो है ना जो हमने एक सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दी हुई चीज़ों को लेकर, वो मुझे लगता है कि काफ़ी जो है ना फैल चुकी हुई है, उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी कि ख़त्म तो भाई दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेकिन कम ज़रूर हो जाना चाहिए। बट आई थिंक जो एक बहुत ही अच्छी बीच में बात की गई वो ये कि दुनिया में हम जितने भी लोग हैं वी ऑल आर फ्रॉम द सेम सॉइल, ठीक है, तो अब हम उस मिट्टी से हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हम लोगों को सबको एक करती है। और मैं खुद इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि लाइक जो एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों के बीच में, आई डोंट नो कि लोगों के बीच में ये क्यों एक वो वाली चीज़ आ जाती है, फैक्टर आ जाता है। बट मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट सबसे ज़्यादा ये लगा कि जब सदगुरु ने बोला कि मुझे ये नहीं समझ कर्मा पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए था, सो वो मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपके जो फेथ है, मुझे नहीं पता
ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये नहीं पता कि इस्लाम में कर्मा का कोई रोल है या नहीं है, या इसके बारे में बोला जाता है या नहीं बोला जाता, बट मैंने शुरू से ये एक बात ज़रूर सुनी हुई है, कर्मा के जो करोगे वो भरोगे, बिल्कुल, मेरे दिन भी याद था। सो अगर हम लोग देखें तो वर्ड को किसी और मतलब वर्ड के साथ हम कहेंगे कि जोड़ के तो आपको एक मीनिंग बता दिया गया है, बट उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, और ये बात बोली है कि अगर हम लोग ये सोचना शुरू हो जाएंगे कि हमने कुछ पास्ट में गलत किया होगा तो हमारे साथ गलत हो रहा है, और हमने अच्छा किया होगा तो हम अच्छा करें, ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर जो मेमोरी रह जाती है, जो सोच हम लोग रखते हैं और जिस तरीके से हम लोग फंक्शन करते हैं अपनी बॉडी को, हमारे साथ चीज़ें वैसे ही होना शुरू होती है। और मैं अभी के टाइम में ये बहुत अच्छे से मानती भी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि मैं जिस जोन में जाऊँगी ना, मैं अगर पॉजिटिव जोन में होंगी मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, मैं नेगेटिव जोन में होंगी मेरे साथ नेगेटिव चीज़ होंगी, और अगर मैं नेगेटिव जोन से निकलकर पॉजिटिव जोन में जाने की कोशिश करूँगी तो मुझे बाकी एनर्जी से भी ये कोशिश मतलब एक हेल्प मिलेगी कि वो मुझे उस जोन से निकाल सकें। सो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझने की कि हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को। यार दुनिया में मैं आपको बात करूँ ना, आपको कोई भी काम करना हो ना, इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग जो आपकी होती है उसमें आपको हर काम जो है ज़बरदस्ती जो है वो करना पड़ता है, हर काम में ज़बरदस्ती दिल लगाना पड़ता है। जब आपका उसमें दिल लगना शुरू हो जाता है ना, फिर ज़रा आपका जो है ना फिर खुद दिल करता है कि मैं काम करूँ। अब जैसे ईमान दी जो है व्लॉग बनाती हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग में ये ठीक है आज बना लिया, 2 दिन नहीं बनाया, 4 दिन नहीं बनाया, ठीक है ना, लेकिन टाइम के साथ साथ इन्होंने अपने आप में बेहतरी की, ठीक है, तो इनमें ये चीज़ आई नहीं, अब मैंने डेली बनाना है, मैंने काम करना है, मैंने ये चीज़ करनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है ना आपके साथ आपके अंदर वक्त के साथ साथ जो है वो आती हैं। लेकिन पता है क्या मौजम, मुझे ऐसा लगता है ना हम दोनों की जर्नी ना ये यूट्यूब की वजह से बहुत डिफरेंट हुई है। और इसलिए बोले मुझे आज के टाइम में ऐसा लगता है कि मतलब 4.5 साल पहले जिंदगी बेकार, मतलब मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था और मैं चीज़ों को क्यों ऐसे नहीं समझती थी, या मुझे ऐसे क्यों नहीं आइडिया होता था कि लाइफ को इतनी डिटेल में लेते हैं। सो मुझे ये नहीं मैं कहूँगी कि रिग्रेट है, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो बाकी आने वाले जनरेशन्स हैं, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि उनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया हो, जो कि नहीं होता और ना उस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। सो मुझे इस लिहाज से वाकई में लगता है कि मैं जितनी भी वीडियोस देखती हूँ, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से इंडिया में आपको बहुत डिटेल और डीप स्पिरिचुअलिज्म नज़र आता है। और जो आप शुरू से चीज़ें देखते जाते हो, सुनते जाते हो, उसका आपके ऊपर आपकी लाइफ पे असर होता है। और पता है मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि ये आपको डिफरेंट जनरेशन्स में डिवाइड कर देता है। मैं अगर इस बेस पे अगर बात करूँ, क्योंकि एक साइड पर वो लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, और दूसरी साइड पर वो लोग हैं जो समझते नहीं है और वो अपने तरीके से समझ रहे होते हैं कि भाई ये स्पिरिचुअलिटी है, और उनको वो चीज़ें सही नहीं लग रही होती। तो मुझे ये बड़ा एक अंतर नज़र आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना क्योंकि अब हम नए एक तो स्टूडेंट हैं, सो क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हमेशा ही स्टूडेंट रहना चाहूँगी, मैं जानना चाहूँगी मज़ीद चीज़ों के बारे में। और स्टूडेंट रहने का मज़ा ही बहुत मज़ा आता है, कसम से बहुत मज़ा आता है, आपको इतनी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो अभी मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जो यंग जनरेशन है जो हमारे यहाँ पर, उनको इन चीज़ों के बारे में पता चले, और एटलीस्ट हमने ऑल्दो बहुत मुश्किल है उनको समझाना, ये भी मैं मानती हूँ, बट ये है कि एटलीस्ट आप उनके साथ डिस्कशन करो, मे बी कभी उनको समझ आ जाए। क्योंकि मैं जब भी जो यंग किड्स हैं उनके साथ बात करती हूँ तो उनको बातें समझ नहीं आती, बट मैं इसलिए करती हूँ कि शायद उनको कभी समझ आ जाए। तो बाकी ये कि ओवरऑल वीडियो बहुत मज़े की थी। और यस, लाइफ में एक बार मुझे लगता है मौजम भी और मैं भी, हम दोनों ईशा फाउंडेशन ज़रूर देखना भी चाहेंगे। और हम लोग नवरात्रि है ना, नवरात्रि होती है ना यार, नवरात्रि के अलावा भी कभी भी मुझे मौका मिले मैं तब भी अटेंड करना चाहूँगा। वो नाइट भी जो है वो ज़रूर वहाँ पर स्टे करना चाहूँगी, और मैं देखना चाहूँगी, मैं वहाँ की एनर्जी और वाइब को जो है वो फेस करना चाहती हूँ, फील करना चाहती हूँ। फिर उसके अलावा जो हम लोगों ने ध्यान देखा था वो भी मैं देखना चाहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं वाकई में जाकर फील करना चाहती हूँ, वो वाइब को जो हम लोग सिर्फ वीडियोस की हद तक देखते हैं और जानते हैं। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो, और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।